Matters with permission of Chair, Dr. Kanimoji NVN Somu. Yes. Thank you, Chairman, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Thank you, Chairman, sir. Concern over rising cases of dubious drug trials having serious repercussions on the health care sector in the country. Please go ahead. Thank you, Chairman, sir. Sir, it is my prime duty to bring the notice to this House, a very serious issue raised by the Ethical Committee of the National Institute of Virology about the rising cases of dubious drug trials in India, which have serious repercussions on the whole health sector, sir. It also raised serious questions about the monitoring and quality control of the clinical studies in our country. Recently, the Drug Controller General of India, the DGCI, has received an appeal to investigate the critical gaps in clinical trials by a pharma company to develop a biosimilar product for treatment of breast cancer, sir. For a company to conduct trials, all trials have to be registered with the Central Trial Registry of India. The most important factor in such trial is the genuineness of the original product, which is considered the gold standard. Any doubt about the authenticity of the gold standard is bound to give misgivings about the integrity of the whole trial and the effectiveness of the biosimilar copy being tested. So the allegation is that the trials are being conducted just 4 months before the procurement of the gold standard drug from the original manufacturer. Sir, a principal assessor at the National Accreditation Board of Hospitals and the Quality Control of India had called the Ethics Committee of the medical colleges and the big hospitals as dysfunctional, as they are just namesakes and do not scrutinize medical research properly in many instances. If this spurious thing going undetected by the IECs and the IRBs of the 40 premier institutions of the country illustrates the porosity of the checks and balances on the ethical conduct of clinical trials. This raises a serious question about the authenticity of the trial data. By no sleight of hand can this anomaly be brushed under the carpet, sir. The human lives are at the stake if this drug sees the light of the dubious trial. Unfortunately, the same pharma company has a substantial large contribution through electoral bonds. The data released by the Election Commission on March 14th has revealed 35 pharma companies in India have contributed nearly 1,000 crores of to political parties across the state and center. Through the companies which are being invested for poor quality drugs which they are purchased through the bonds. As a member of the medical fraternity, sir, I caution the Union government to take stringent action against all those involved in these unethical practices in clinical trials and not to play with the life of the innocent people by supporting and facilitating those who conduct dubious, unethical drug trials in the country. Sir, through the chair, I request the Honorable Minister of Health. I will also give a personal writing to him on this issue with all the data. Kindly ask him to do the needful. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Sri A. Rahim, concern over mismanagement of railways in Kerala. Thank you, sir. Sir, no one seems to be able to understand the plight of train passengers in Kerala. Sir, it is beyond our imagination. A couple of weeks ago, 6 passengers fainted due to an uncontrolled rush in Parashuram Express. Lot of similar incidents has been happening in Kerala day by day, every day. Sir, the train journey has become a nightmare for Kerala passengers. Sir, we don't have adequate train service. The union government is very much interested in the renaming process. They are changing the names of roads, they are changing the names of buildings and everything. The same trend is happening in railways also, sir. Passenger trains name has changed to express special trains. Sir, the aftermath of this Tughlaqian reforms, the ticket fare has increased. The ticket fare has increased, sir. Sir, the automatic signaling system is not implemented in Kerala. From Thiruvananthapuram to Ernakulam, maximum speed of a train can only be 100 km per hour. From Ernakulam to Shornur, the maximum speed is only 90 km per hour. Sir, Kerala is leading state in the country in terms of railway passenger numbers and revenue. However, the railway is not ready to improve infrastructure in Kerala, also not even allowing the Kerala government to do so, sir.
The union government is putting red tape on the dream project of Kerala, K-Rail, for mere vested political interest. I would like to urge the government that don't scrap the K-Rail project, don't scrap the Kerala future development. Sir, moreover, Indian Railway is yet to come out of its colonial hangover. Their attitude is extremely inhuman. In the last week in Thiruvananthapuram, a heartbreaking incident happened. Joy, a railway contract worker from a poor family, died when he was cleaning a canal for railways. Not even a senior official of the railways came to the spot to properly inspect the situation or coordinate rescue operations. Sir, I have already written a letter to the Honorable Railway Minister. Unfortunately, there is no reply, sir. No reply. Sir, the Kerala government has already ensured a befitting compensation for Joy's family. And the Municipal Corporation of Thiruvananthapuram will build a house for them. I urge the union government ensure the befitting compensation for this victim. And also, sir, one thing is that, sir, the railway... Over, Mr. A. Rahim, over. Srimati Geeta Urf Chandraprabha demand to explore possibilities for new railway projects in Auraiya district. Srimati Geeta Urf Chandraprabha. मुझे तो पता नहीं जी, मुझे पता भी नहीं था। आपने ये सब्जेक्ट उठाने के लिए जी 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 माननीय चेयरमैन को नोटिस दी थी। जी, एक बताना चाहिए। सभापति महोदय, रेल भारत के विकास का इंजन है। रेल आधारित विकास ने देश को अनेकों क्षेत्रों में विकास में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में औरैया के लोग अनेकों वर्षों से रेल आधारित विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। औरैया तथा निकटवर्ती अन्य स्थानों पर अनेकों बार रेल की संभावनाओं पर सर्वेक्षण भी हुआ है। लाखों रुपया सर्वेक्षण में खर्च किया जा चुका है। वर्षों से चले आ रहे सर्वेक्षण कार्य तथा लाखों रुपए खर्च होने के पश्चात भी औरैया के लोगों को रेल की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से निवेदन करती हूं कि पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अथवा कन्नौज से विधुना औरैया होते हुए जालौन तक तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे हमीरपुर और औरैया होते हुए इटावा तक नए रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा रेल परियोजनाओं को अतिशीघ्र जमीन पर उतारा जाए, जिससे कि औरैया, विधुना, अन्य निकटवर्ती इलाकों के लोगों को रेल की सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं के विकसित हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती गीता जी। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट आई है 2023। एक माइक ऑन है, आप प्लीज। सर बंद था सर, कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। 300% से ज़्यादा बैंक फ्रॉड्स हो चुके हैं, बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, और 708% जो हैं उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स हैं। डिजिटल फ्रॉड्स की बढ़ोतरी 2 साल में 708% हुई है, और इसमें से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंक लोन्स को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर गंभीरता दिखाई गई है, और करीब 1 साल में 166% इंक्रीज़ हुआ है। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो प्रभावित होते हैं इसकी वजह से, करीब 75% हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक 67% हैं। सर, इस मुद्दे को मैं गंभीरता से इसलिए उठाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो प्रभावित कर रहे हैं उन आम जनता को कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी तो मिल गई है पर उनको उसकी समझ नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 600% बढ़ चुके हैं, पर उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स जो आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स लेकर, वो 81% हैं सर। तो इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिशिंग कॉल्स होते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, इम्पर्सनेटिंग कॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं। सर, यहाँ तक ही नहीं, मैं आईटी मिनिस्टर के संज्ञान में काफ़ी बार ला चुकी हूँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होती है
मोबाइल फोन्स पर जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, पेगासस का तो हमने मुद्दा उठाया ही है। स्टेट सर इसी का ये डिजिटल को ही लेकर है सर। स्टेट स्पॉन्सर जो अटैक्स हो रहे हैं, इसका फिर से दूसरा अटैक की सूचना आईफोन ने सब लोगों को दी है, काफ़ी उसमें से सीनियर लीडर्स भी हैं। मैंने खुद ने ये चिट्ठी लिखी और जो ए रहीम जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री जवाब नहीं देते हैं, मैंने भी चिट्ठी लिखी है पर उसका जवाब आज तक आया नहीं है सर। इसलिए आपके माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि आप मंत्री को ये डायरेक्शन देंगे कि इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो हम चिट्ठी लिखते हैं, हम कंसर्न्स उठाते हैं, उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं एक गंभीर विषय के बारे में शून्यकाल में बात करना चाहता हूँ। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लो ग्रेड कोल कार्बोसेल मिलता है, कोयला मिलता है। इलीगली वहाँ पे खदान होती है, एक खड्डा खोदा जाता है। जब खोदते खोदते लगता है कि ये लेयर कोल का मिला है, तो समांतर हॉरिजॉन्टल उसमें खदान मजदूर करते हैं। गैस निकलती है, कभी ज़मीन बैठ जाती है, मजदूर मरते रहते हैं। 10 दिन पहले 3 मजदूर जान गंवा चुके हैं और ये खड्डे जो है वो 1000 से ज़्यादा उसी एरिया में काम चल रहा है। ज़्यादातर लोग कंप्लेन भी लिखवाने से डरते हैं, क्योंकि जब कंप्लेन करने जाता है परिवार कि मेरे परिवार के सदस्य की डेथ हो गई, तो पुलिस कहती है कि वो इलीगल काम कर रहा था, पहला एफआईआर में नाम उसका लिखा जाएगा। तो वो एफआईआर तक करवाने नहीं जाते हैं और मरने वाले लोग ज़्यादातर जवान होते हैं और ये खड्डा करके जो काम करते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेबल पर्सन्स होते हैं। मैं खुद उधर विजिट करके जो जानकारी मिली मुझे, स्थानीय लोग कहते हैं हर महीने 1.5 लाख रुपये का हफ्ता दिया जाता है नीचे से ऊपर तक, ताकि ये इलीगल एक्टिविटी कोई रोके नहीं। और ये जो केस हुआ उसमें हमने कोशिश की कि कौन ये खड्डा करवा रहा था, मजदूर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो ये एफआईआर बनी। इस बार एफआईआर बनी, 4 लोग इसमें दोषी है सर, और जो दोषी है उसमें 4 में से एक जो है वो ब्लॉक पंचायत का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। नंबर 2 जो एक्यूज्ड है वो नेता है और उसकी बीबी जिला परिषद में मेंबर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के नेता लोग हैं। ये हकीकत बाई हुई एफआईआर की है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें दूसरी तरह से मत लो। जान की कीमत कोई भी मुआवजा कोई भी नहीं दे सकता है। इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कीमती है। हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए कि गरीब जो जान गंवाता है उस परिवार की क्या हालत होती है। अतः मेरा अनुरोध है, मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि इसको लाइटली ना ले। ये एक घटना नहीं है, बार बार, और अभी सिर्फ मैं भी देखता हूं, कोई भी देख ले, गूगल मैप खोल के अगर आप सैटेलाइट इमेज देखोगे, आपको ये खड्डे और कोयले जो ब्लैक स्पॉट मिलेंगे, वो सारे ब्लैक स्पॉट है, चोरी है, वो गलत तरीके से वहां खदान हो रही है और गरीब मजदूर जान तोड़ रहा है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए या सीबीआई से जांच कीजिए। लोकल अथॉरिटी को तो हफ्ता जाता है, ये बंद ऐसे नहीं होगा। तो यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद उपसभापति। धन्यवाद मिस्टर शक्ति सिंह जी। ऑनरेबल श्री पी विल्सन। Thank you, Chairman, sir. I rise to bring to the attention of the Union Government through this August House that several important public projects in Tamil Nadu have been stalled due to the refusal of the Union Government to sanction the eligible and entitled funds. Firstly, the Chennai Metro Rail Limited Phase 2 project, inaugurated by the Honorable Union Home Minister in 2020 with a projected cost of Rs 63,246 crores, has been pending for clearance and approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs for the last 3 years. Sir, I request the Honorable Union Finance Minister to allocate the accepted 50% of the project cost amounting to Rs 31,623 crores expeditiously. Secondly, the detailed project reports for the Coimbatore, Madurai and Trichy Metro Rail projects have also been submitted to the Union Government and are pending approval for many months. Thirdly, with regard to the Tamil Nadu request for releasing of Rs 37,907 crores from the NDRF fund after the 2 natural calamities in last December, a mere Rs 276 crores have been released by the Union Government. Sir, I request the Honorable Union Home Minister to release at least 3,000 crores immediately as an interim measure
to undertake restoration and relief works in Tamil Nadu. Fourthly, several dues from the Government of India are pending to be released to the Government of Tamil Nadu, including Rupees 3,403 crores towards CMR subsidy and intrastate movement reimbursement, Rupees 78 crores towards Home Guards, Rupees 188 crores towards Railway Force, Rupees 138 crores towards Special Police Battalion at Tihar Jail, Rupees 52 crores towards ESA scheme. Fifthly, the Samagra Shiksha Integrated Scheme for school education. The Project Approval Board has allocated Rupees 3,533 crores for the year 2023 and 2024 and Rupees 3,586 crores for fiscal year 2024 and 25 to the state of Tamil Nadu with union government contribution of 60%. However, not even a single rupee is released. I take this opportunity to remind the Honorable Union Finance Minister that India is a union of states and India's constitution contemplates cooperative federalism between the states and the union. The union has to be fair in its fiscal allocation and devolution of funds to the states. Tamil Nadu and its people are being penalized for political reasons and receiving discriminatory treatment. The refusal of the union government to fund projects in Tamil Nadu and release owed funds is in violation of the constitution and counterproductive. The Honorable Union Finance Minister has to remember that Tamil Nadu growth is India's growth. Therefore, through this August House, I urge the Honorable Prime Minister to step in and direct the concerned ministries to approve all the pending projects and release entitled funds due to Tamil Nadu without any further delay. Thank you very much, Chairman. Thank you, Honorable P. Wilson ji. Mani Sri Mujibullah Khan ji. Dr. Sasmit Patra will associate. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं उड़ीसा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में मेरा पक्ष रखना चाहता हूं। भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब राज्यों का विकास हो। जब राज्यों का विकास होगा तभी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है वो फुलफिल हो सकता है। मेरे नेता नवीन पटनायक जी, सारा भारतवर्ष जानता है वो कितना सिंपल सिटी में रहते हैं, सीधे साधे इंसान है। 4 जोड़ा कुर्ता पैजामा और 4 हवाई चप्पल से वो 25 साल उड़ीसा का शासन किए। नवीन पटनायक जी जब मुख्यमंत्री थे बार बार स्पेशल कैटेगरी के बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे, हमारे सांसद लोकसभा में उठाए, राज्यसभा में उठाए, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट अभी तक केंद्र सरकार हमको नहीं दी। हम समझते हैं उसका क्राइटेरिया है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, लेकिन कानून तो बदले जा सकते हैं, किसी के भलाई के लिए चेंज किया जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी आ सकता है। हमारा राज्य 22% ट्राइबल इलाका है, आदिवासी रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। वहाँ प्रभु जगन्नाथ की मंदिर है, प्रभु लिंगराज का मंदिर है, कोणार्क टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। कोस्ट लाइन जो है, कोस्टल बेल्ट जो है हमारे उड़ीसा में 480 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है, जिसके लिए तूफान बार बार हमारे राज्य को झेलना पड़ता है। इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में खास करके 7 जिला हमारे आते हैं अध्यक्ष महोदय। वो होता है गंजाम, खोर्धा, पुरी, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, ये कोस्टल बेल्ट में ये जिला जाते हैं। जब 1999 में सुपर साइक्लोन हुआ था तब 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और 15,000 से ज़्यादा बेघर भी हुए थे, 20,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए थे, अपने माँ बाप को उन लोग खो दिए थे। 2000 में जब मेरे नेता नवीन पटनायक जी उड़ीसा का शासन लिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो कोशिश किए कि साइक्लोन से कैसा निपटना है। हर साल साइक्लोन आता है, लेकिन कुछ प्रमुख साइक्लोन के बारे में बताना चाहता हूं। फाइलिन 2013 में आया था, हुडहुड 2014 में आया था, तितली 2018 में आया था, फनी 2019 में आया था। आप जानते हैं नवीन बाबू हर वक्त जीरो कैजुअलिटी के मामले में नंबर 1 है और सारा देश के विदेश के लोगों से भी उनको धन्यवाद मिला है कि वो जीरो कैजुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अध्यक्ष महोदय है बीजेपी के नड्डा जी, धन्यवाद। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं।
रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। माननीय सस्मित पात्रा जी, आप एसोसिएट करें, आप एसोसिएट करें। Sir, I'm associating. Can I take 10 seconds to make a point? प्लीज एसोसिएट ओनली। Sir, I associate with this matter, sir. Thank I'll just take 30 seconds if it's your permission. एसोसिएट ओनली। I associate with this matter. थैंक यू, थैंक यू। माननीय श्री गोला बाबू राव, डिमांड टू इम्प्लीमेंट ए comprehensive national coastal tourism development policy in the country. Thank you, Upasavapati Mahoday. Very important and innovative idea to bring to the notice of the union government. Now, in entire India, more than 9,700 kilometers coastal line is there. Especially in our Andhra Pradesh, 970 kilometers coastal line is there. I am happy, but so far the union government and the state governments are doing some tourist base for the coastal line. But in fact, we can develop a comprehensive policy to develop the entire beach coastal line in the almost all the states, including from Gujarat to West Bengal, from all the line. What I request the union government to identify as many beaches as possible and start the resorts, hotels and other recreation clubs. Apart from this, what I request the union government and the state governments, kindly you start the hatcheries and you start also some other basic infrastructural facilities for all the coastal lines. We can earn lot of the foreign exchange, and also we can also develop especially the fisheries, the communities which are really immune to live in the coastal lines. What I request, our state government also have taken very excellent measures, even identifying the 350 beaches and start the small hotels and the recreation clubs. I want ultimately the request to the union government to start the comprehensive National Coastal Corridor Development Corporation or the agency and allot some funds. In fact, we can earn a lot of the foreign exchange. Apart from that, we can also provide the employment opportunities to the local living, the communities, and also the recreational activities. Interstate people or the foreign, just coming to our India in the August House. Through you, I request the Honorable Prime Minister or Tourism Minister, Fisheries Minister, and all other concerned ministers to rethink about the new and innovative idea to start a comprehensive development of this corridor beach policy and help the entire. धन्यवाद माननीय श्री गोला बाबू राव जी। माननीय डॉक्टर भीम सिंह जी, डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड्स इन बिहार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं बिहार से हूं और बिहार में डबल इंजन की सरकार बिहार के जो गौरवशाली अतीत है उसको पुनर्प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। कई क्षेत्रों में अच्छे काम हो रहे हैं। भारत सरकार से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, परंतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार की एक बड़ी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका दक्षिण का इलाका प्रायः सुखाड़ से और उत्तर का इलाका प्रायः बाढ़ से ग्रसित रहता है। खास तौर पर बाढ़ की जो समस्या है, इसे जीवन और संपत्ति की काफ़ी क्षति होती रही है। यहाँ तक कि जब 1934 में भूकंप आया था, उसके बाद बाढ़ आई तो पूरा
तबाह हो गया उत्तर बिहार, और उत्तर बिहार के जो हिस्से थे 2 हिस्से में बट गए, कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। उस कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कोशिश किया और उन्होंने दोनों सिरों को, मिथिलांचल और कोसियांचल को जोड़ा। ये सारे काम हो रहे हैं और अभी मौजूदा सरकार भी विकास की अनेकों योजनाएं की हैं, लेकिन विकास के जो भी काम होते हैं वो बाढ़ के कारण बह जाते हैं, ढह जाते हैं। और बाढ़ का कारण है कि जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, बागमती है, ये सारे का सारा का कैचमेंट एरिया जहां वर्षा होती है नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल से वर्षा का पानी हमारे बिहार में आता है और बिहार के परिसंपत्ति को और जीवन को नष्ट कर देता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। देश आज़ादी के बाद ही एक विशेषज्ञ के.एल. राव के अध्यक्षता में समिति बनी। उसने तत्कालीन सरकार को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को सुझाव दिया कि कोसी में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में हाई डैम की स्थापना की जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया। तब से लेकर के ये समस्या बनी हुई है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उत्तर बिहार को धन्यवाद माननीय डॉक्टर भीम जी। माननीय श्री नरेश बंसल जी, आपका समय खत्म हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। माननीय श्री नरेश बंसल जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूस दिया गया। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अनेकानेक लोग बलिदान हुए। आपातकाल का वह स्याह कालखंड लोकतांत्रिक सेनानियों के लिए एक दो स्वप्न है। आज भी उस दौर को याद कर लोकतंत्र सेनानियों की आंखें नम हो जाती हैं। विपक्ष के ज़्यादातर नेता खुद आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। देश में 1975 में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों की ओर से की गई लड़ाई को समझाने वाला एक अध्याय स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे सभी छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ होना चाहिए कि आपातकाल क्या था, इसे कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया। छात्रों को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए। उन बलिदानियों के संघर्ष को वर्तमान और भावी पीढ़ी जान सके, इसलिए आपातकाल की संपूर्ण गाथा बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए। उपसभापति जी, आपातकाल को अगर सही तरीके से पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए तो लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास होगा और प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। भावी पीढ़ी को इस काले अध्याय से परिचित कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान का गला घोंट दिया था। आज
उनके परिवार। बस जो माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं कृपया अपना नाम यहाँ भेज दें। माननीय श्री मनोज कुमार झा जी, डिमांड फॉर एलोकेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर बिहार। शुक्रिया उपसभापति महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूं। देश की प्रगति का खाका, उसका ब्लूप्रिंट बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है। बिहार में एक भी नहीं है सर, बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं। सबसे पुरानी मांग हमारी थी। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। श्री बाबू भाई जयसिंह भाई देसाई। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान एक गंभीर मुद्दे पर केंद्रित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। अपने सब इंसान प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, वो 5 तत्वों को सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, उसको हम माता तरीके से पूजते हैं, उसको भी उसका नीर जल अच्छा करना चाहिए। हमारे समुद्र तट जो है वो भी अच्छा करना जरूरी है। हमारे जो हिल स्टेशन है वहाँ भी बहुत ही सारे प्रॉब्लम है। अरे हमारे जलवायु बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे गुजरात में भी अभी बहुत ही बारिश हुई है, इससे हमारे किसानों को सारे क्षेत्रों में 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया है। क्वेश्चन आवर।